السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اس لیے آج ہم آئے ہیں کراچی ایکسپو سینٹر، جہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے ماس کووڈ ویکسینیشن سینٹر جو ہے قائم کیا ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ویکسینیشن ہو رہی ہے اور عوام کو کیا فیسلٹیز ملی ہیں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منصور حسین صاحب، جو کہ ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ہیں، اور ایکسپو سینٹر میں یہاں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ فیضان شیخ موجود ہیں، جو کہ آئی ٹی ہیڈ ہیں، اور آئی ٹی کی جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہاں پر آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب، کیا ہو رہا ہے پہلے تو بتائیں ذرا. جی، ہم نے گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم ماس پاپولیشن کو ویکسینیٹ کریں گے، اور اسی کنٹینیویشن میں ہم نے یہاں پہ ایکسپو سینٹر پہ ایک ماس ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیا ہے، اور مور دین 30,000 کی کیپیسٹی ہے ہماری. ہم یہاں پہ ویکسینیٹ کریں گے لوگوں کو، اور 24/7 یہ جو آپ 30,000 کہہ رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ایک وقت میں 30,000 لوگ آ سکتے ہیں؟ 30,000 لوگ پر ڈے کے حساب سے. ہاں، اور یہ 24 آورس اوپن ہے؟ 24/7 یہ اوپن ہے، اور ہم نے عید کے دنوں پہ بھی یہ 24/7 یہ اوپن رکھا تھا، اور اراؤنڈ 35,000 لوگ ویکسینیٹ ہوئے ہیں عید کے دنوں میں بھی یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ہمارا پرپز یہ ہے کہ پوری ماس پاپولیشن ویکسینیٹ ہو، کہ یہ کرونا کی جو چین ہے ہم اس کو بریک کر سکیں اور اس کی ٹرانسمیشن روک سکیں، اور ہوپ فلی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ فرمائیں کہ ویکسین کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور دنیا بھر کے مختلف ممالک جو ہیں، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں آنا ہے تو آپ نے کون سی ویکسین لگانی ہے، اور تو اس حوالے سے آپ کون سی ویکسین لگا رہے ہیں، پچھلے دنوں میں کون سی ویکسین لگاتے رہے ہیں، اس پر جو لوگوں کے اندیشے ہیں اس کو کیسے دور کرنا چاہیں گے؟ جی، ہمارے پاس 4 قسم کی ویکسینز اویلیبل ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان نے پروکیور کی ہیں. اس میں 3 جو ہیں وہ چائنا سے ہیں، اور ایک گاوی کی ہے جو ایسٹرازینیکا ہے، وہ یو کے کی سے امپورٹ ہوئی ہے. جو چائنا کی ہیں ان میں سائنو فارم ہے، کینسائنو ہے، اور سائنو ویک ہے. یہ 4 ویکسینز یہاں پہ ہم نے کی ہیں. کوئی بھی اس قسم کا کوئی نادیندہ کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، اور سارے الحمدللہ جو ویکسینز ہیں وہ سکسیزفل رہی ہیں. ہم نے جو سائنو فارم یہاں پہ اسٹارٹ کی تھی تو لوگ پہلے کچھ مت وغیرہ تھے. جب سائنو فارم یہاں پہ سب لوگوں نے لگوائی تو آج موسٹ سکسیزفل سائنو فارم ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کینسائنو آئی. کینسائنو سنگل ڈوزیج ہے. سائنو فارم، سائنو ویک اور ایسٹرازینیکا ڈبل ڈوز ہے. تو جو کینسائنو ہے وہ سنگل ڈوز ہمارے پاس لمیٹیڈ تھے، تو ہم نے 80+ لوگوں کو کینسائنو لگائی تھی. اس کے بعد ابھی سائنو ویک ہے اور ایسٹرازینیکا ہے اویلیبل، جو ہمارے پاس 2 ہیں، اور ہم ساری پاپولیشن کو وہ لگا رہے ہیں. اس طرح کے کوئی بھی AEFI کے کیسز وغیرہ رپورٹ نہیں ہوئے. یہ فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ یہ کوئی چوائس ہے عوام کی اپنی، کہ کوئی شخص آتا ہے یہاں پہ انٹر ہوتا ہے، بولتا ہے کہ مجھے یہی ویکسین لگوانی ہے، یہ اس کی چوائس پر ہے، یا آپ کی جو یہ آپ پر ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ہے آپ وہی لگائیں گے؟ ہم تو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو اویلیبل ہیں وہ لگوا لیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت 2 آپشنز ہیں، ایک سائنوویک ہے اور ایسٹرازینیکا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی اگر لگوانا چاہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سائنوویک لگوانی ہے تو ہم سائنوویک لگا دیتے ہیں. اس کی ایفیکیسی بھی وہی مور دین 85% ہے، اور اسی طرح ایسٹرازینیکا کی ہے وہ بھی مور دین 90% ایفیکیسی ہے. ایسٹرازینیکا ہم لگا رہے تھے جو وہ ابو 40 ایئرس ایج والوں کو لگا رہے ہیں، اور اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہائپرٹینسو ہے یا کوئی اس طرح کی تھراپی پہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کلوٹنگ فیکٹرز کے اگینسٹ وہ تھراپی لے رہا ہے، تو اس کو ہم کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، اس کو نہیں لگا رہے، مگر ابھی بھی اسٹڈیز چل رہی ہیں. جی، اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی ایڈ جو باقاعدہ طور پہ دیا گیا ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں ویکسین کس طرح سے لگا سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے بھی بتانا چاہوں گا ناظرین. اور اس میں جو ہے کہ ایسے لوگ یعنی کہ ویکسین لگانے سے پہلے مندرجہ ذیل باتوں کو پوری طرح تسلی کر لیں. متعلقہ افراد پہلے سے دل کے امراض میں مبتلا نہ ہو اور قریبی خاندان میں ایسی کسی بیماری کی موجودگی نہ ہو. متعلقہ افراد پہلے سے دماغی امراض کا شکار نہ ہو اور قریبی خاندان میں فالج جیسی کوئی بیماری موجود نہ ہو. خواتین میں وقفے کی گولیاں یا انجیکشن کے استعمال کی ہسٹری نہ ہو. خون کے جملہ امراض مثلاً جماد وغیرہ کی کوئی ہسٹری نہ ہو.
कोविड-19 की शदीद मर्ज को 8 हफ्ते से कम अरसा गुजरा हो और टांगों में खून की शरियानों के जमात की बीमारी मुब्तला ना हो। तो ये जो है ये चीज़ें जो हैं ये बताई जा रही हैं, लेकिन इन चीज़ों के बताने से थोड़ा सा एक सवाल और उठ रहा है कि लोग थोड़ा डर भी रहे हैं कि इसका कोई रिएक्शन ना हो जाए अगर मैं वैक्सीन लगाता हूँ यहाँ पर आकर 40 प्लस लोग या खासतौर पर ज़्यादा एज के लोग हैं 60 प्लस 70 प्लस के, तो और एलर्जी का एक बड़ा इशू है कि अगर किसी को एलर्जी है तो उसका कोई रिएक्शन ना हो जाए। जी सर, अगर एलर्जी से होता है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो बाद में लगा सकते हैं, मगर ये जो आपने कहा ना कि लोग डर रहे हैं, डर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि जब काफ़ी लोग लगा रहे हैं, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोर देन 60,000 लोग एस्ट्राजेनिका लगवा चुके हैं सिंध में, कराची में ज़्यादातर वो कराची में यूज़ हुई है, तो इस तरह का कोई इंसिडेंट वगैरह नहीं हुआ, AEFI का केस नहीं सामने आया। इट मीन्स इट्स वेरी सक्सेसफुल। डेली की तादाद जो तो 2 लाख से ज्यादा जो बढ़ गई है पूरे पाकिस्तान में, तो इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया, तो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, आ रहे हैं, और ये तो मैं कहूँगा कि ये एक नेशनल काज है, सब लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और वो आके वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। IT के हवाले से आप बताएं कि बस लोग जो आ रहे हैं कैसे उनका डाटा देखा जा रहा है, फिर उनको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि ट्रैवलिंग में आसानी हो, तो इस प्रोसेस को कैसे रखा गया है? इस प्रोसेस को सर इस तरीके से रखा गया है कि नादरा इनेबल्ड कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास। 1166 पे जब कोई भी मैसेज करता है सो वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर हो जाता है विद द नादरा कंट्रोल सिस्टम। जब आप वैक्सीन लगवा के जाते हैं तो वो हम नादरा के सिस्टम में ही इंडक्ट कर देते हैं कि इनको फर्स्ट डोज इस डेट को इस पर्टिकुलर वैक्सीन की लग गई है। उसकी जब सेकंड डोज ड्यू होती है तो उनको ऑटोमेटिकली एक मैसेज सेंड हो जाता है 1 दिन या 2 दिन पहले कि आपकी सेकंड डोज ड्यू हो गई है, आप इस सेंटर या किसी भी सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और वो आके दूसरी जब डोज लगवाते हैं तो वो जब सिस्टम में एंटर हो जाती है तो वो nims.nadra.gov.pk की वेबसाइट पे जाके या किसी भी नादरा के वैक्सीनेशन उस पे सेंटर पे जाके ना अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकता है। तो ये प्रोसेस एक है जो नादरा कंट्रोल सिस्टम है। और इम्यूनाइजेशन के लिए ना हम आगे भी प्लान ये है कि हम सारी इम्यूनाइजेशन जो है वो इसी पे ही लेके आएंगे ताकि कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट इशू हो और वो डेटा डायरेक्टली FIA के साथ भी शेयर हो रहा है कि कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो वो उसका इसमें सर्टिफिकेट में मेंशन है कि आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है? जी सर्टिफिकेट में वैक्सीन भी मेंशन होगी, डेट भी मेंशन होगी, सेंटर भी मेंशन होगा, द बैच। और इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि कुछ ममालिक जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सऊदी अरब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम कौन सी वैक्सीन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर हमारे मुल्क में ट्रैवल करना है। तो अगर आपने वो वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो इसका मतलब ये है कि फिर क्या होगा? उसमें सर देखें, इन दी एंड सब सारी वैक्सीन हर कंट्री में अलाउ होंगी। एक टाइम है, स्टार्ट में एस्ट्राजेनेका और फाइजर अप्रूव हुई है फॉर सऊदी अरब। अब UAE आप जाते हैं तो वहाँ साइनोफार्म अप्रूव्ड है। तो टाइमली बेसिस पे ये हो रही है बिकॉज स्टार्ट है। अब जिस तरह WHO ने साइनोफार्म अप्रूव कर दिया तो कुछ अरसे में ये मतलब नजर आ रहा है हमें कि सऊदी अरब में और बाकी ममालिक में भी साइनोफार्म एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी नीड है कि हर वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी हर कंट्री में होनी चाहिए। अदरवाइज तो एक बंदे को फिर 3 या 4 वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी। तो ये डेफिनेटली इस पे गावी और WHO काम कर रहा है कि जो है वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो सारे कंट्रीज में सारी वैक्सीन की होनी चाहिए। ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, ये फरमाएं कि ये जो ड्यूरेशन है, यानी मिसाल तो 21 डेज बाद दोबारा जो सेकंड टर्न आपने लगवानी है, ये कब तक इफेक्टिव है, यानी कि ये इसका सर्टिफिकेट कब तक इफेक्टिव है? ये अब तक तो इसकी स्टडीज नहीं आई कि ये वैक्सीन कब तक इफेक्टिव है, मगर ये सुना जा रहा है कि मिनिमम 1 ईयर तक ये इफेक्टिव रहेगी वैक्सीन। और उसके बाद स्टडीज आने दें, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। अच्छा, एक इसमें और बहुत अहम सवाल है कि अगर किसी ने ट्रैवल करना है, आप जो वैक्सीन आज लगा रहे हैं यहाँ पर, आज आप कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं? हम 2 लगा रहे हैं, एस्ट्राजेनिका और साइनोवैक। ठीक है, साइनोवैक अगर कोई लगा लेता है तो चाइना की ये वैक्सीन है और उसे जिस कंट्री में ट्रैवल करना है वहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर दोबारा जो है वो जो एक्सेप्टेबल है वो प्राइवेट जाए लगाए, तो ये इसमें कोई रिएक्शन तो नहीं हो सकता कि डबल वैक्सीनेशन अगर वो कर लेता है कोई बाद में? इस तरह नहीं है। अभी तक ममालिक में 2 चीजें चल रही हैं, एक तो वैक्सीनेशन कार्ड का चल रहा है, दूसरा ये चल रहा है कि आप अपने जो है वो टेस्ट करवाएं PCR। अगर PCR नेगेटिव है तो वहाँ पे जाके आप क्वारंटीन होंगे, उसके बाद आप वहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड हो। तो नाज़रीन, एक टाइम ब्रेक का ब्रेक के बाद मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरूंगा, तो ये दिखाते हैं आपको ये प्रोसेस है क्या वैक्सीन लगाने का।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा कि लोग इस तरह से आ रहे हैं और फिर सैनिटाइजर उन्हें दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और गेट पर ही हमारे माशाल्लाह से जबरदस्त स्काउट्स मौजूद हैं, बोतराब स्काउट्स के। जनाब बताएं क्या सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पे सर्विसेज जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन लोग ले रहे हैं कि कितने कौन सी वैक्सीन लग रही है, किसको और कब कब लग रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। तो अब ये है कि ये मेन एंट्रेंस है और माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर आए। अब अगला प्रोसेस क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, जरा आप हमारी कुछ हेल्प करें जी। NIC देख के उनका कि एज देख के लेडीज को इस तरफ कर रहे हैं, हाँ। और डाइवर्ट कर रहे हैं। जेंट्स और लेडीज यहाँ मिक्स हैं और वहाँ जितने आर्म फोर्सेज हैं वो सेंड की जा रही हैं और जेंट्स को भी उसी साइड पे। ठीक है, तो मैं खुद भी अभी वैक्सीन लगाने के प्रोसेस में जा रहा हूँ। तो अब जो है वो ये डिस्टेंस से चेयर्स मौजूद हैं, तो आप जो है वो कि आपका नंबर जो है वो इसी हिसाब से आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है तो आप किसी भी चेयर पे जाके बैठ जाएं। जी। बिल्कुल तो मैं देख रहा हूँ ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है लोगों का। बिल्कुल, जिनको बीपी का इशू हो पहले बीपी चेक करवा देंगे। अगर बीपी हाई है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनको, थोड़ा सा वेटिंग एरिया जो है बैक साइड पे बना हुआ है, और वेटिंग के बाद इनको आगे जो है वैक्सीन के लिए भेजा ठीक जाएगा। है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर खासतौर पे गर्मी का सीजन है, खासतौर पे अगर लोग चल के आ रहे हैं तो उसमें जरूरी है कि उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए। लेकिन जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो डायरेक्ट जो काउंटर पे जाए। काउंटर पे जाएगा। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चेयर्स लगी हुई हैं एक गैप के साथ जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं, और उसके बाद जब उनका नंबर आएगा तो वो आगे चले जाएंगे, एक एक करके आगे बैठते रहेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे आगे की चेयर्स खाली हैं और एक साहब जो है मेरे आगे बैठे हुए हैं, तो इन्हें आगे जाना है। और अब इसके बाद मैं अपनी टर्न जो है उसके इंतजार में यहाँ बैठ जाता हूँ, उसके बाद जो है काउंटर पे जाएंगे और जो भी डाटा रिक्वायर्ड है, और वो खास डाटा नहीं है, 4-5 चीजें नॉर्मल, खासतौर पे आपका ओरिजिनल CNIC आपके साथ होना चाहिए ताकि आपकी एज मालूम हो सके। 40+ लोगों को वॉकिंग पे लग रहा है। 1166 पे भी आप मैसेज कर सकते हैं तो आपके पास कोड आ जाएगा, तो अपने करीब तरीन इलाके में जाके आप जो है वो वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन जो एक्सपो सेंटर है वहाँ ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप बगैर मैसेज किए भी यहाँ पर आ सकते हैं, वॉकिंग भी यहाँ पर आ सकते हैं और आपको जो है वैक्सीन लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए। अब ये लोग लेकर आपके पास आ रहे हैं प्रिंट, तो क्या प्रोसेस है इसका आगे? इसका प्रोसेस ये है कि ये आपको लग रही है वैक्सीन फर्स्ट डोज साइनोवैक, दूसरी डोज लगेगी आपको 28 दिन के बाद 14 जून को, फिर आपको 14 जून को आना है, फिर आपको अपनी सेकंड डोज लगवानी है। और लगवाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट पीछे इंतजार करना है ताकि आपको कोई चक्कर वगैरह ना आ जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर इन केस हो जाता है तो फिर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो आपको देख लेते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं, बल्कि गवाह बन रहे हैं मेरे साथ के जनाब, मैं भी इस प्रोसेस में शामिल हो रहा हूँ। और ये मैं वेट कर रहा था, मैं इससे पहले भी वैक्सीन लगवा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको ऑन एयर जो है आपके सामने शेयर करूँ, ताकि जो है वो मैं कह सकूं कि भाई मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, आप भी इस प्रोसेस से लाजमी जो है गुजरें। लग गई? जी जी। अच्छा, पता भी नहीं चला। 10-15 मिनट इंतजार करना है, फिर आप दोबारा कहिएगा। 10-15 मिनट आपने इंतजार करना है पीछे वेटिंग एरिया में, पोस्ट वेटिंग एरिया में, फिर आपने जाना है। ठीक है जी, 10-15 मिनट जो है इंतजार करना है, और ताकि इसका कोई प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखने के लिए। और वैसे अभी तक क्या रिस्पॉन्स है, मतलब जो लोग वेट करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अभी तक हमें ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया, लेकिन बैठना जो है नेसेसरी है। हमें पेशेंट्स का भी ख्याल रखना है। कुछ हाइपर टेंसिव भी पेशेंट आए जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, ये कुछ एंजाइटी की वजह से भी हो जाते हैं, तो हमने बैठाना जो है नेसेसरी है ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑन द स्पॉट डॉक्टर्स देख लें, वरना वो घर चले जाएंगे फिर उनको कोई और भी इशू हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, और इसी तरह से आप काम करते रहें, खिदमत करते रहें, लोगों को मुतमईन करें। आधा हल जो है वो आपकी बातों से
आधा हल तो वैक्सीन के अंदर है और आधा हल उस चीज के अंदर है कि लोग कॉन्फिडेंस के साथ मुतमईन होकर यहाँ से जाएं। थैंक यू जी। नाज़रीन, अब जो है वो वेटिंग एरिया में थोड़ी देर वेट करना है और वेटिंग एरिया भी हम देखेंगे कहाँ पर है। ये सारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं और बड़ी तादाद में ये बूथ बने हुए हैं और अभी ज्यादातर तो मुझे खाली नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये बूथ आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचे और ये एक इम्पोर्टेंट मरहला है। इसको जितनी जल्दी आप कर जाएंगे उतना अच्छा होगा, आपके लिए फायदा होगा। आने वाले कल का नहीं मालूम कल क्या सूरत हाल हो। वैक्सीन खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि वैसे तो अवेलेबल होगी लेकिन कोई भी सवाल उठ सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी से जो फ्री अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इससे फायदा उठाएं। डॉक्टर आतिफ मंसूर हमारे साथ हैं जो कि कराची एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसके शिफ्ट इंचार्ज हैं। डॉक्टर आतिफ, फरमाइए कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी तक जितनी देर हम यहाँ पर हैं लोग बहुत मुतमईन हैं एक बेहतरीन एनवायरनमेंट के अंदर और मेरे ख्याल से एक शख्स को ज्यादा 10 to 15 मिनट्स लग रहे हैं उसमें फ्री हो रहा है। बिल्कुल जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए मौजूद है। यही कि अवेयरनेस जितनी लोगों को जाती जा रही है उतनी अच्छा रिस्पांस हमें मिलता जा रहा है। और ईद पे भी खुला हुआ था और 24 घंटे ये सेंटर्स खुला हुआ है और 96 क्यूबिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं ताकि इस वजह से हम लोगों को रखा है आसानी हो। जितनी आसानी होगी उतनी जल्दी लोग ताकि लगवा ले। 96 जो क्यूबिकल से मुराद ये कि 96 लोग एक वक्त के अंदर उनको वैक्सीन लग सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ ज्यादातर तो खाली है अभी ये है कि दोपहर का टाइम है थोड़ा सा, लेकिन ये कि जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे रश बढ़ता जाता है। और ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं, रमजान में बहुत रश था। हमें जब अफ्तारी के बाद हजारों लोग यहाँ पे खड़े होते थे। तो अब ये है कि जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे रश बढ़ता जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज जाएगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पे ये जितने लोग जल्दी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं ना उतनी जल्दी हम अपने मुल्क को बचा सकेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन फिर भी तशवीश पाई जाती है। और जब मैंने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट दी कि इस मौजू पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो मेरे पास लातादाद सवालात आ गए लोगों के कि भाई हम इस वजह से वैक्सीन नहीं लगा रहे, इस वजह से वैक्सीन नहीं लगा रहे। सबसे पहले तो ये वैक्सीन एक कोविड की दवा है, कोविड से बचाव का तरीका है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, यानी इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। बात ये रिजवान भाई, मैं आपके थ्रू एक गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से कि जब भी कोई अच्छी चीज आ रही है उसको आप पॉजिटिविटी को फैलाएं आगे। वैक्सीनेशन जब भी आती है ना, वैक्सीनेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन, क्योंकि आपका कोई कोविड का कोई इलाज तो है नहीं, सिम्प्टोमेटिक आप ट्रीट कर रहे होते हो, तो आपको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? वैक्सीनेशन के जरिए। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी कोई चीज अप्रूव होती है पूरे दुनिया में, आपको पता है करोड़ों लोगों को लग गई है, हम लोग हमेशा वैक्सीनेशन में कोई ना कोई ऐसी बातें निकाल के ले आते हैं जिसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। और वो लोग लेके आते हैं जिनका मेडिकल से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। मैं हमेशा अपने लोगों को ये मशवरा देता हूँ, अगर आपको किसी से डिस्कस करना है तो डॉक्टर से करें। हमारी ये प्रॉब्लम ये कि हर चलता फिरता बंदा डॉक्टर बन जाता है और वो अपने लाइफ के जरिए सोशल मीडिया पे जो भी दिल में चाहे वो डाल देते हैं और उसको फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। डॉक्टर हों या रिसर्चर्स हों या साइंटिस्ट हों, तो वो भी तो कोई फाइनल बात नहीं कर रहे वैक्सीन के बारे में इसकी कि अभी क्योंकि ये एक प्रोसेस के अंदर है, एक तजुर्बे के अंदर है, अभी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो ये इस तरह की जब बातें आती हैं तो लोग तशवीश में आते हैं। जब 1 साल लगा, हमें 1.5 साल लगा, उसके बाद ये वैक्सीनेशन आने स्टार्ट हुई है। और जब कोई चीज अप्रूव हो रही है और जब पूरी मास एक जगह पे लग रही है तो वो देखें उसमें फिर कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को। हमारी ये प्रॉब्लम ये है कि देखें यहाँ पे जब भी कोई वैक्सीन आती है, जब फर्स्ट टाइम वैक्सीन आई जो हम लोगों ने लगाई थी अजाल बकर, तो अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिल रही थी कि जी आप चाइनीज बोलने लगोगे, आप कॉकरोचेस खाना शुरू हो जाओगे। आई मीन आपको हंस हंस के आप पागल हो जाते थे कि लोग हमसे सवाल करते थे, आप बिलीव करें। फिर दूसरी वैक्सीन आई, उसके बारे में ऐसी बातें शुरू हो गई जो वो लोग बातें कर रहे थे और वो कहते थे हमने वही पहली वाली वैक्सीन लगाया जो पहली वाली वैक्सीन को बुरा कहते थे। अब वैक्सीन आ रही है तो अब लोग आ रहे हैं जिनको सऊदी जाने के लिए हमें वही वैक्सीन लगा रहे हैं। तो देखें ये हम लोग ही फैला रहे हैं जो बातें। जब भी मैं गुजारिश करूंगा सोशल मीडिया पे हम बगैर तस्दीक के अपने कंसर्न डॉक्टर से कोई चीज ऐसे ना, मैं आपको बताऊं हमें टाइफाइड की वैक्सीन दी, जब आप बिलीव करें मैं डॉक्टर जब बच्चों का था, टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। जब गवर्नमेंट ने वो स्टार्ट करी फ्री ऑफ कॉस्ट देना, तो उसके बारे में अगर आपको याद हो एक वीडियो किसी ने शेयर कर दी, ये हो गया, वो पूरी वैक्सीनेशन का हमारा सिलसिला डैमेज हुआ 2 दिन। तो देखिए उससे प्रॉब्लम आ बाद में जी वो सारी फेक चीजें थी। ऐसे पोलियो पे भी हम तो खत्म नहीं कर पा रहे क्योंकि पोलियो के बारे में ऐसी ऐसी बातें लोग उड़ा देते हैं जिससे आप एज अ डॉक्टर आपको सुन के हंसी आती है यार ये लोग कैसी कैसी बात। अच्छा अगर आप मुझसे पूछें आपको किसने बताया तो कहेंगे जी वो मेरी खाला के बेटे ने बताया था, वो मेरी मासी तक ने बताया था। आप बिलीव करें तो ये हमारे हालात हैं। जब तक हम ये झाला से नहीं निकलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे,
تو جب تک ہم اپنے ملک کو کسی بیمار، اور یہ کورونا ایسا دیکھیں لوگوں کے بزنس ختم ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے، لوگ پریشان حال میں ابھی، تو اگر جب تک ہم یہ ویکسینیشن نہیں لگائیں گے تو ہم اس وبا سے نہیں نکل سکیں گے. اور یہاں پہ ہم نے بھی لگائی نا ویکسین، سب سے پہلے تو ہر کیئر ورکر نے ویکسین لگائی ہے. اگر کوئی ایسی پرابلم ہوتی تو ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو لگائیں؟ خیریت سے کوئی مشکل تو نہیں ہوئی کسی قسم کی یہاں پہ آپ کو؟ نہیں بیٹے صحیح ہے. یہاں تک آنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے آنٹی؟ مشکل نہیں ہوئی، ابھی لگوا کے آ رہے ہیں انجیکشن، ایزیلی ہو گیا سب کچھ. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے تھوڑا سا آتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ شاید بہت ٹائم لگے گا، ہمیں بہت انتظار کرنا پڑے گا. بالکل بھی نہیں ہوا، بہت طریقے سے ٹائم سے سب مینج ہو رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے سر. آپ جی 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 ڈاکٹر ہے، میں نے اٹینڈنٹ جی جی آف مائی پیشنٹ. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کیا صورتحال ہے؟ صورت یہ حال ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر اٹس مائی ریسپانسبلٹی ٹو پوائنٹ آؤٹ دا تھنگز وچ آر گوئنگ رانگ. جی. تو یہ جو واٹر ڈسپینسر رکھا ہوا ہے یہاں پہ ڈسپوزیبل گلاسز ہونے چاہیے تھے. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک اسٹیل کا گلاس ہے جو ایچ اینڈ ایوری ون از یوزنگ. ٹھیک ہے. اوکے. یہ آپ نے بہت اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور سخت گرمی ہو رہی ہے، کوئی اگر باہر سے آتا ہے یہاں پہ تو پانی پیے گا لازمی، اور پانی پیے گا تو یہاں پہ پانی کا پراپر انتظام ہونا چاہیے. نہیں، پانی کا پراپر انتظام ہے لیکن ڈسپوزیبل گلاسز نہیں ہے. ایک اسٹیل کے گلاسز میں سارے پیشنٹس پی رہے ہیں. یہ اس کو نوٹ کیا جائے، اور یہاں کے انچارج ہیں ہم ان سے یہ بات کہہ کے جائیں گے، بلکہ یہ مسئلہ حل کر کے جائیں گے یہاں سے. اور ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی، مینجمنٹ کے ذریعے، اور سندھ گورنمنٹ تک آپ کی بات بھی چلی میں گئی ہے. کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں خود ایک گورنمنٹ جاب. بہت اچھا انتظام ہے، لیکن جہاں جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تھینک یو. جی. اگر کوئی پرابلم ہوگی تو یہاں پر ڈاکٹرز ہیں، وہ سالو کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ کس کو ویکسین کرنی ہے اور کس کو نہیں کرنی. ٹھیک ہے. بس اب زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کا جو ڈاکٹر ہے جو آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے اس سے بھی آپ کنسلٹ کر لیں، کیونکہ اس کا آپ ریگولر پیشنٹ ہیں تو وہ آپ کی سمپٹمس کو زیادہ بہتر جو ہے جانتا ہوگا، جو آپ کا ڈاکٹر ہوگا. اور اگر وہاں کوئی مشکل ہے آپ کو اور وہاں سے آپ کو آنسر نہیں مل رہا، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر ویکسین کو بھی جانتا ہو، تو آپ پھر یہاں آ سکتے ہیں. یہاں ڈاکٹرز اویلیبل ہیں اور یہاں آپ کو گائیڈ لائنس فراہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے جب یہ اناؤنس کیا کہ ہم یہ پروگرام کرنے یہاں جا رہے ہیں تو ہمیں بھی زیادہ لوگوں کی یہی کال آئی ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں یا کڈنی پیشنٹس ہیں یا جن کو بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے کوئی بھی میڈیسن، کچھ خاص میڈیسنس ہوتی ہیں جن کو لینے سے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں، وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں یہاں پر. بالکل غلط کانسیپٹ ہے. وہ آئیں جتنے ابھی تک پیشنٹ آئے جو کارڈک پیشنٹ ہے، ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ اور ڈائبٹیز کے ساتھ، ہم سب سے پہلے ان کی اسکریننگ کرتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہم ان کو تھوڑی دیر کی ریسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم فوراً ان کو ویکسین نہیں کرتے. پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر ان کو تھوڑا سا ایڈوائز کرتے ہیں. جب ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کا دوبارہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو ویکسین کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، مینٹلی طور پر وہ ریلیکس ہو کر جاتے ہیں. ابھی ہمیں کوئی ایسا سائن نہیں ملا کہ کوئی ہائپرٹینسو پیشنٹ یا کارڈک پیشنٹ آیا ہو، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ یا کوئی ایسا سائن آیا ہو. ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق احمد DHU ایسٹ. سر السلام علیکم. زبردست فیسلٹی ہے. آج ہم نے کافی جو یہاں پہ لوگ آئے تھے جنہوں نے ویکسینیشن کی لگوائی ہے ان سے بات کی، لوگ مطمئن ہو کے جا رہے ہیں. تو ہمارا آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم زیادہ لوگوں کو میسج دیں کہ لوگ قدم بڑھائیں اور یہاں پر آئیں، مثلا رکیں مت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو یہ بات آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک لائق تحسین ہے، کیونکہ ہم نے یہ سہولت اپنی کمیونٹی، اپنے افراد کے لیے آرگنائز کی ہے، اسٹیبلش کی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد یہاں آ کے کووڈ کی ویکسینیشن کرائیں. وہ تمام افراد جو کہ جتنی زیادہ تعداد میں یہاں آئیں گے اس سے ہم اس پینڈیمک سے نبرد آزما ہونے میں بہت ہمیں سہولت حاصل ہوگی. یہاں تقریباً ہمارے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز اس سہولت کو دینے کے لیے ہمتن یہاں مصروف ہیں. یہاں ہمارے 96 کیوبیکلز ہیں جس میں ہم تقریباً اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک شفٹ کے اندر 4000 سے زیادہ افراد کو ہم ویکسینیٹ کر سکتے ہیں. یہاں 24 گھنٹے اس سہولت کو آرگنائز کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ افراد سے ہماری گزارش ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اس سہولت کو حاصل کریں. تھینک یو سر، بہت شکریہ. ڈاکٹر انیلا قریشی ہمارے ساتھ ہیں، انچارج ہیں کراچی ایکسپو سینٹر ویکسینیشن سینٹر کی. ڈاکٹر صاحب کیا فیگرز ہیں ذرا فرمائیے.
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9th डे है हमारे वैक्सीनेशन का एक्सपो सेंटर पे, और ये रमजान शरीफ में इसका स्टार्ट हुआ था। ईद के दिन भी मैं यहाँ मौजूद थी अपने स्टाफ के साथ, और कल संडे था, संडे के दिन भी मौजूद थी। 24 घंटे ये फंक्शनल है, और अभी तक जो है 33,617 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। और आज की जो फिगर है, अब जो टाइम हुआ है 4 बज रहे हैं दोपहर के, और 2936 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। उसमें एक मैं खुद भी शामिल हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, मैंने कहा भाई मैं खुद भी इस प्रोसेस से गुजरूं, क्योंकि कैसा फील हो रहा है वैक्सीन लगाने के बाद? मुझे जिस वक्त वैक्सीन लगी थी उसके कुछ 5 मिनट तक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि मैंने कहा कुछ हो ना जाए, तो इसलिए मैं आराम से सुकून से एक जगह बैठ गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल, हम यही रिकमेंड करते हैं सबको कि वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट्स के लिए आप जो है ना हमारे पास ही रहें पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया में, कि अगर आपको साइकोलॉजिकली या वैसे भी अगर कुछ तकलीफ होती है तो हम उसको दोबारा चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करेंगे। अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो हमारे माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं, उसी वक्त हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं आया है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त बात है। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची के मारूफ ताजिर भी हैं, उसके साथ साथ थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं। अतीक साहब फरमाइए कि ये जो फैसिलिटी है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ये जबरदस्त फैसिलिटी है, और थोड़ा सा इससे पहले से ये स्टार्ट नहीं हुआ था। लोग जब अपने घर के करीब कोई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहां जा रहे थे तो वहां गर्मी भी थी, एसी का ये एनवायरनमेंट नहीं था, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स थे। तो अब आप क्या समझते हैं ये मसला काफी हद तक हल हो गया इस तरह से? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत मशहूर हूँ सिंध गवर्नमेंट का, डॉक्टर अनीला का, इनके साथियों का। यहाँ पे इतना अजीम शान इंतजाम है, इतनी मेहरबानियां है, इतना प्यार है, इतना केयर है, और जिस तरीके से विद इन नो सेकंड्स रजिस्ट्रेशन हुई, विद इन नो सेकंड्स वैक्सीनेशन हो गई, और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं उसके लिए, तो ये डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद और सब कुछ साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एयर कंडीशनर चल रहा है, इतना अच्छा माहौल है, इतना केयरिंग माहौल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि जोक दर जोक आए, अपनी वैक्सीनेशंस कराएं आके यहाँ पे। इतना अमेजिंग एनवायरनमेंट उनको कहीं और मिलने वाला नहीं है। एंड थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट वंस अगेन कि उन्होंने ऐसा गजब, इतना जबरदस्त इंतजाम किया है। इट्स मार्वलस, आउट ऑफ द ब्लू, और बहुत अच्छी फैसिलिटेशन दी जा रही है। स्काउट्स यहाँ पे मौजूद हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर नीला, कुछ चीजें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि एक तो ये कि डिस्पेंसर्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हर डिस्पेंसर पे एक स्टील का गिलास है, तो ये मुनासिब नहीं है। अगर यहाँ पे डिस्पोजेबल पेपर ग्लासेस आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारा न्यू सेटअप है, काफी चीजें ऐसी हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी एक आपको पता है इम्पोर्टेंट है, बाहर बहुत गर्मी है। आज टेंट लग गया है, और ये हमारे डीएचओ साहब और डायरेक्टर साहब जो है ना, ये हमारी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं और ये शुरू दिन से हैं, लेकिन लाजमी है हर चीज जो है ना विद इन सेकंड्स नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती। ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जो भी पॉइंट्स हैं हम ये नोटेड हैं, और आप बिल्कुल आप क्योंकि इंचार्ज हैं इसलिए मैंने आप तक ये बात पहुंचाई। दूसरा ये कि जो लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल सामने गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और अच्छी फैसिलिटी है, पार्किंग की बड़ी फैसिलिटी है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है पैदल आ रहा है तो गेट नंबर 1 जो है वो काफी थोड़ा सा दूर मुझे महसूस हो रहा है इस गर्मी के अंदर। अगर दोपहर में कोई आ रहा है और वहां से लोग पैदल चलते हुए यहाँ तक आएंगे, तो कुछ आपने उनको फैसिलिटेट करने के लिए, अगर वो पैदल यहाँ पे आ रहा है, कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सोचा आपने? एम्बुलेंसेस तो मौजूद हैं, अगर लेकिन इतना कोई है नहीं, रक्षा वगैरह पे लोग आ रहे हैं, तो आपकी ये पॉइंट भी मैं देख लूंगी। अगर ऐसा कुछ है तो हम एम्बुलेंसेस वगैरह के ड्राइवर्स को बोल देंगे, अगर वहाँ सिक्योरिटी वालों से कांटेक्ट कर लें, अगर इस तरह के कोई लोग आ रहे हैं तो वो उनको वहाँ से पिक एंड ड्रॉप दे देंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है। ये कुछ थोड़ी सी 1-2 चीजें थी ये मैंने आपके सामने पेश कर दी है, लेकिन अदरवाइज जो है बहुत जबरदस्त इंतजाम आते हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ, देखिए ये कुर्सियां खाली हैं, इसका मतलब ये कुर्सियां आपको इंतजार कर रही हैं कि आप जल्द से जल्द आएं और 10 मिनट्स में फ्री हो जाएंगे। लोग हमारे कौम के अंदर मिजाज है वीआईपी कल्चर का। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम पहले सोचते हैं यार हम अपने ताल्लुकात के बंदे ढूंढें, हमें जल्दी से हम निकल जाएं। आप कोई बहुत बड़े आदमी, छोटे आदमी है, अमीर है, गरीब है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस शहर के हैं, किसी दूसरे शहर के, आप यहाँ पर आए, एक पाकिस्तानी एज अ फर्स्ट सिटीजन राइट है आपका, आपको मुश्किल से 5-10 मिनट्स के अंदर आप फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल सही, कोई लोग जो वीआईपी कल्चर में ना पड़े।
बिल्कुल इसी तरह वीआईपी कल्चर में पड़े, हर आदमी यहाँ पे आने वाला वीआईपी है। देखिए मेरे साथ भी बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ है, आई एम वन ऑफ द विटनेस। और मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से बिजनेस कम्युनिटी से अपील करूंगा, प्लीज डोंट हेजिटेट। आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अपीलिंग टू यू, कम फॉरवर्ड एंड गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल और बता दें आखिरी, वैक्सीन जो है, मतलब वैक्सीनेशन पे भी बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, तो अब जो वैक्सीन लग रही है या फ्यूचर में जो वैक्सीन लगनी है वो कौन सी है, क्योंकि लोग इस पर भी सर्च कर रहे हैं कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं, कौन सी वैक्सीन ना लगाएं। जी, पहले जो वैक्सीन आ रही थी एस्ट्राजेनेका, वो पहले जब आई थी तो उस वक्त किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, और अब जो खत्म हो गई है तो मतलब जब स्टॉक थोड़ा स्टॉप हो गया हमारे पास आना, तो वो अब लोगों की डिमांड बढ़ गई है। अब हम फिलहाल मैं आपको यही बताती चलूं कि अभी हमारे पास साइनोवैक अवेलेबल है। तो जो भी वैक्सीन है उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, टेंशन करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो भी वैक्सीन आ रही है ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से आ रही है, और आप लोग उसको टेंशन ना लें। कोई किसी भी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक जाहिर नहीं हुए, तो आप काइंडली आएं और सब वैक्सीन लगवाएं। लोग ट्रैवल के लिहाज से सोच रहे हैं ना, क्योंकि सऊदी अरब ने जैसे कोई वैक्सीनेशन के बारे में कहा है कि हमें यही लगाएं तो आए, तो अब उसमें ये ना हो ना कि पता चला लोग वैक्सीनेशन लगा लें तो उन्हें ट्रैवल करना हो तो उन्हें दोबारा फिर वैक्सीनेशन के प्रोसेस से जाएं। देखिए, ट्रैवल करना है दोबारा वैक्सीनेशन के प्रोसेस से तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि नादरा में एक ही दफा एंट्री होगी। अब ट्रैवल पॉलिसीज भी मैं समझती हूँ कि सारी दुनिया को वो दोबारा कंसीडर करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, इस पूरे प्रोसेस से एक्सपो सेंटर के मैं खुद भी गुजरा, मैंने भी वैक्सीन लगाई, और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप यहाँ पर आएं और जरूर ये जो गवर्नमेंट की जानिब से फ्री वैक्सीनेशन मिल रही है इससे मुस्तफीद हों। एक बहुत बड़ा सवाल मुसलसल उठता रहा है कि पाकिस्तान में कब वैक्सीन आएगी और कब हमें वैक्सीन लगेगी। तो अब ये फैसिलिटीज जो है पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, खासतौर पे कराची एक्सपो सेंटर के अंदर बहुत जबरदस्त फैसिलिटी मौजूद है। बहुत जल्दी 10-15 मिनट्स के अंदर आप फ्री हो रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि देर मत कीजिए, अगर आप 40+ हैं फौरन आइए, आप खुद या अपने प्यारों को यहाँ पर लेकर आएं और उन्हें वैक्सीन लगवाएं। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।